This story has been collected in Panchtantra and Hitopdesh. In this story, there was a king named Yadu. He was very religious minded and brave. One day, he saw a Brahmin walking in the lonely forest. He was looking so brave and fearless. He was looking so brave and fearless, the king asked to him, "Who taught you this wisdom?" Then the Brahmin said that he has learned this knowledge from 24 gurus. I shall tell you about 14 of them. The young Brahmin said, as soon as the king heard about the 24 gurus, he became very curious to know about them. Then Brahmin told about his 14 gurus. First of all, he said, "My first guru is the earth itself. मेरा पहला गुरु अर्थ है, and my second guru is air, and third guru is the sky, earth, air, sky, and my fourth guru is water. My fifth guru is fire, my sixth guru is moon, and my seventh guru is sun. My eighth teacher is pigeon. Ninth guru is python and dragon. My 10th guru is the ocean. My 11th teacher is a little moth. My 12th guru is the honeybee, and my 13th guru is fish." Like this, my 14th guru is the bird Kurar. Like this, he told about 14 gurus. The king listened about them, and he satisfied the Brahmin, and he want to on that moment the king want to change himself. Dear students, this is the story of 14 gurus. Now we will solve the question and answer. First of all, I will write some word and meanings. So see on the board, listen carefully. First word, determination. Determination, resolution. Resolution means दृढ़ निश्चय, पक्का इरादा. Second is honesty, integrity. Honesty, ईमानदारी, integrity, synonyms of this word.
means ईमानदारी. Like this, selflessness, selflessness, brotherly. Brotherly, brotherly means निस्वार्था, means भाईचारे की भावना से. Spirit of hard work, spirit of hard work. Spirit of hard work, diligence. Diligence means कड़ी मेहनत करने की भावना. Spirit of hard work, कड़ी मेहनत करने की भावना means diligence. Like this, number 5. Concern for all, concern for all, सभी के लिए चिंतन करना, सभी के लिए चिंतन करना means anxiety, anxiety. Number 6, optimism. Optimism, confidence. Confidence means विश्वास. विश्वास किसमें होता है? जिससे आशा होती है, उम्मीद होती है. नेक्स्ट, नंबर 7 means number 7, thoughtfulness. Thoughtfulness, चिंतन या सावधानी. कंसर्न, स्पिरिट ऑफ कर्निंग. स्पिरिट ऑफ कर्निंग. स्पिरिट ऑफ कर्निंग. एक्सेंट्रिक, एक्सेंट्रिक एक्सेंट्रिक मीन्स स्पिरिट ऑफ कर्निंग की भावना से वर्क करना. मीन्स समायोजन, समायोजन की भावना. स्पिरिट ऑफ कर्निंग, समायोजन की भावना, अपने में मिला लेने की भावना, भाईचारे की भावना. डियर स्टूडेंट्स, these are some word meaning. You will learn all the word meanings of the chapter. Now we will discuss or we will write the question and answer of this chapter. Dear students, answer the following questions. Answer the following. Answer the following questions. Question, first question is,
learn our lessons for an honest life. For an honest life. Yes, answer. We learn faith from the honesty. We learn faith from the honesty because we give up ownership. Because we give ownership of the outcome. Yes, we learn faith from the honesty. हम honesty से, ईमानदारी से विश्वास को सीखते हैं, क्योंकि we give up ownership, क्योंकि हम ownership को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं जब हमारे अंदर से ये जो है ऑनरशिप निकल जाती है, तो हम जो है अच्छे बन जाते हैं और हम जो है उससे क्या हमारे अंदर पैदा होता है, विश्वास पैदा होता है, कॉन्फिडेंस आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पॉइंट बी। Yes, question, what did Dattatreya learn from the following gurus? Following gurus से, नीचे दिए गए गुरुज के से जो है दत्तात्रेय ने क्या सीखा? फर्स्ट पॉइंट, अर्थ। अर्थ से क्या सीखा दत्तात्रेय ने? पेशेंस, फॉरगिवनेस, चैरिटी। पेशेंस, फॉरगिवनेस, चैरिटी। फॉरगिवनेस मतलब इग्नोर कर देना किसी। पेशेंस, धैर्य। चैरिटी, दान की भावना। Next, sun.
together knowledge, I have learned together knowledge all sources and then distribute Dear students, he is saying that from sun I have learned knowledge, मैंने ये ज्ञान लिया, ये सीखा from all sources, सभी जो sources हैं, सभी स्रोत हैं, and then distribute, सभी जो हमें साधन मिले उनसे हमें नॉलेज को कलेक्ट कर लेना चाहिए, एंड देन और तब उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, उन्हें बांट देना चाहिए, उन्हें हमें दूसरों को दे देना चाहिए। नंबर थर्ड पॉइंट, एयर it has taught me to always, it has taught me, it has taught me to always and detached yes from air I learned it has taught me, इससे मैंने सीखा टू ऑलवेज रिमेन एक्टिव, हमेशा एक्टिव रहना, एंड डिटैच्ड और अलग रहना, ये मैंने एयर से सीखा। नंबर 4 मून, मून से क्या सीखा? देखिए मून से इट हैज टॉट मी दैट it has taught me that यस मून से मैंने सीखा इट हैज टॉट मी क्या? दैट लाइफ इज ऑल्सो अ मिक्सचर ऑफ जॉयज एंड सोर्स, जीवन जो है वो दुख सुख दुख का मिक्सचर है, सुख दुख का मिश्रण है।
मीन्स कभी दुख आते हैं तो कभी खुशी आती है, कभी खुशी आती है तो कभी दुख आते हैं। इसलिए मैंने मून से सीखा। क्यों? देखो बेटा, जिस तरह से मून जो है डे बाय डे अपनी सिचुएशन को चेंज करता है, कभी कहते ना अब चांद बढ़ रहा है, कभी कहते चंद्रमा मून जो है घट रहा है, तो लाइक दिस मैंने चंद्रमा से सीखा कि कभी दुख आते हैं लाइफ में और कभी सुख आते हैं। इसलिए कहा गया है कि सेड दैट द लाइफ इज फुल ऑफ मिक्सचर जॉयज एंड सरोज। C point. From whom did Dattatreya? Following lesson. From whom? Dattatreya. Dattatreya learned. From whom Dattatreya learned the following lesson. We will say number one is yes, means man should keep his soul above his sensuous desires. Man should keep his soul, his sensuous desire means पर्सन को, आदमी को अपनी जो भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उनको अपनी जो सॉल्स हैं उनसे अबव रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, मतलब अपनी इच्छाओं को सेंस में रखना चाहिए, भाव में रखना चाहिए। और ये मैंने किससे सीखा? स्काई से सीखा। मतलब उन अपनी इच्छाओं को अपने पर हावी नहीं होने देना चाहिए, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में रखना चाहिए। नंबर 2, आंसर, मैन शुड हैव हिज नेचर, मैन शुड हैव हिज नेचर प्योर। मैन को अपने नेचर को प्योर, स्वीट और क्लीन रखना चाहिए। ये मैंने किससे सीखा? फ्रॉम वाटर, वाटर से, वाटर की तरह से रखना चाहिए।
Number 3 point, man should not be attached. Yes, man should not be attached to any particular thing. मैन को किसी पर्टिकुलर थिंग से स्नेह नहीं होना चाहिए, किसी पर्टिकुलर थिंग से अटैच्ड नहीं होना चाहिए। स्नेह में नो अटैच नहीं होना चाहिए उसको। तो ये मैंने किससे सीखा? फ्रॉम द फायर से सीखा। जिस प्रकार से फायर में जो भी चीज़ आती है फायर के सामने वो नष्ट हो जाती है, उसका पतन हो जाता है, वो बर्न हो जाती है, जल जाती है। लाइक दिस मैंने जो है ये सीखा कि हमें जो है किसी पर्टिकुलर थिंग से अटैच नहीं होना चाहिए। फ्रॉम फायर। नंबर 4, yes, attachment. Attachment is the root cause of all our sufferings. Attachment, स्नेह हमारी सब समस्याओं का, हमारे सब दुखों की जड़ है। जड़ का कारण है क्या? हमारा स्नेह, अटैचमेंट, लव। ये सब जो है हमारा दुख का कारण बनता है। और ये मैंने सीखा पिजन से, फ्रॉम पिजन। Dear students, next question is, write the correct option. First point, teacher. Second option, parents. Third option, anyone and anything who can teach us a lesson. हमें कौन एक लेसन हम
हमें कौन एक लेसन सिखा सकता है, इससे हम लेसन सीख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द क्वेश्चन। ए पॉइंट, हु कैन टीच, who can teach us a lesson, who can teach us a lesson? Option number 1, teacher. 2, parents. Parents are youngers. Anyone and anything. Anyone and anything. Yes. तो हम जो है देखिए, who can teach us a lesson, हमें कौन सीख दे सकता है, कौन किससे हम सीख सकते हैं? टीचर से, पेरेंट्स से, पेरेंट्स से भी सीखते हैं, टीचर से भी सीखते हैं, आर यंगर्स अपने यंगर से भी सीखते हैं। तो वी कैन से दैट एनीवन एंड एनीथिंग। दिस ऑप्शन इज राइट। लाइक दिस वी विल से ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। क्वेश्चन नंबर बी पॉइंट, what should we do? What should we do? First option, all down. Yes. Question, what should we do to learn in the best way? हमें जो है what should we do, हमें क्या करना चाहिए अच्छा रास्ता सीखने के लिए, अच्छा ही सीखने के लिए? लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनना चाहिए। ऑब्जर्व केयरफुली, केयरफुली ऑब्जर्व करना चाहिए। रिमेंबर केयरफुली, और रिमेंबर रख जो है रिमेंबर केयरफुली। तो ये जो है हमारे तीनों ऑप्शन राइट है। सो वी कैन से दैट ऑल द अबव, ऑल द अबव। Fourth option is right. Like this, point C. Point C. Your younger brother
your younger brother your younger brother is advising you something. आपका जो यंगर ब्रदर है वो आपको कुछ सलाह दे रहा है. यू विल, तो आप क्या करोगे? यू विल नॉट लिसन टू हिम, आप उसको ध्यान से सुनोगे नहीं. यू विल लिसन टू हिम केयरफुली, या आप उसको ध्यान से सुनोगे, उसके बाद ध्यान से सुनोगे. या यू विल इग्नोर हिम, आप उसे इग्नोर कर दोगे. या यू विल शाउट एट हिम, या आप उस पर चिल्लाओगे. तो व्हाट विल यू डू? यू विल लिसन टू हिम केयरफुली. दिस ऑप्शन इज राइट. Point B. Your servant your servant works and earns money to study. आपका सर्वेंट वर्क करता है और स्टडी के लिए मनी कमाता है, धन कमाता है. What lesson can you learn from him? आप उससे क्या सीखोगे? क्या सीख सकते हो आप उससे? हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम करना, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, विल पावर, पावर में आप आएंगे, या ऑल द अबव, या सभी राइट में ऑप्शन पर भी. तो ऑल द ऑप्शन आर राइट. ऑल ऑफ द अबव वी विल राइट. क्वेश्चन नंबर 8.
Question number point E. What lesson can you learn from the children? आप बच्चों से क्या सीख सकते हैं? Who won gallantly award every year? जो हर साल अवार्ड जीतते हैं, अवार्ड को प्राप्त करते हैं, क्या सीख सकते हैं आप उनसे? ब्रेवरी, वीरता, हार्ड वर्क, कठिन काम, ओबीडियंस या थॉटफुलनेस? ब्रेवरी, क्या सीखेंगे हम उनसे? ब्रेवरी. Like this student, this lesson has been completed. You will write in your book and notebook. Okay student, all the best.